Good morning, friends, and welcome to Trans India, Real People, Real Emotions. In today's episode, we will be interacting with a person whose heart is filled with emotions for the road transport industry, especially the small truckers. This person has spent 25 years of his illustrious career in the road transport industry, and during the process, he has made many friends. His charming and pleasant personality has left a mark in many hearts. In Trans India today, we are proud to share this space and talk to Mr. Praveen Puntambekar, who spent 25 years of his career in Shriram Transport Finance Company and recently retired from the company as Senior VP and Head of Marketing and CSR initiatives. However, Mr. Puntambekar may have hung his boots at Shriram Transport Finance Company, but as he says, the transport industry runs in my blood. And why not? All through his career at Shriram, Mr. Puntambekar came up with various initiatives that were targeted at the truckers, and not only the truckers, but also their families, their children. But before we get into this very interesting and very engrossing interview, let me tell you something about Mr. Puntambekar. I feel privileged to have known Mr. Puntambekar for almost 25 years, and during the process, we've had many meetings. Mr. Puntambekar has been a wonderful speaker. In fact, you will see that during the interview. And he could hold the audience together for hours. He was loved and liked by all transport associations, by all transporters, young or old. They enjoyed his company, and talking to him was always a pleasure and a learning experience. However, the one trait of Mr. Puntambekar that really stands out is his dressing style. In the last 25 years, on the numerous occasions that I have met him, it would probably just once or twice that Mr. Puntambekar was not wearing a tie or even a suit. Whatever the occasion or whatever the weather, he was dressed to the T. In fact, I often used to joke with him whether he wore ties over his night suits as well. But well, that was Mr. Puntambekar, and that's how he is even today. When we went to interview Mr. Puntambekar, which was after a significant period of the lockdown, the first thing that he thanked me for was that, Girish, after almost 2 years, I'm getting a chance to wear a suit. So friends, I will not hold this introduction any longer, and let's dive into this very interesting interview, part 1 of our interview with Mr. Praveen Puntambekar, coming up after this very short break. You are watching Trans India, Real People, Real Emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जयो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back, friends. You're watching Trans India, Real People, Real Emotions, and we are in conversation today with Mr. Praveen Puntambekar. Praveen ji, thank you for being with us. Let me start with this. How did your career with Shriram Transport Finance begin? Well, Girish ji, first of all, let me thank you for giving me such a wonderful opportunity. I'm really thankful to you. And I'm very happy to be with you after a long time. My journey with Shriram is a long story. I was working with 2 multinational companies. I started working in the year 1975. And before joining Shriram in 1995, I had almost worked for 20 years with 2 multinational companies, American as well as British company, 10 years each. But I was really fed up with the typical American and typical British culture. So I really wanted to work with a true Indian company
which is not only Indian but Indian at heart. I wanted to work with such a company, and that is how I got an opportunity to meet Mr. R. Sridhar, who was the president at that time, and we discussed the opportunities. He said, "You can join me," and that is how I joined Shriram in the year 1995, and since then I have been with them for the last almost 25 years now. That surely is an incredible long journey, I must say. Yes, it has really been a very long journey and a wonderful journey, I tell you. So when you joined Shriram Transport Finance Company, you had no idea of what the transport industry is like. Were you aware of what you were getting into? Absolutely no background, no idea. In fact, that is what I had told Mr. Sridhar also. I said, "Sir, I have worked for 20 years in totally a different environment, different culture, different products, different companies. I don't know how far I'll be able to do justice with this work." He said, "Don't worry, 100-200 ट्रक फाइनेंस करोगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा." So more than me, he was confident about me. Praveen ji, what was your first impression about the road transport industry? आज जो हम इंडस्ट्री देख रहे हैं 25 साल पहले ये बहुत ही अलग थी. Were you in for a shock? I was not shocked but I was scared. Because इससे पहले मैंने ट्रक को छू के भी नहीं देखा था. Before joining Shriram, I did not know anything about the truck except I had seen trucks passing by. इसके अलावा ट्रक का मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था. तो I was a bit scared, a bit hesitant initially. पता नहीं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, whether I'll be able to do justice with them, that was the biggest thing. और दूसरा ये था कि पता नहीं मैं उन्हें समझ पाऊँगा कि नहीं, वो मुझे समझ पाएंगे कि नहीं. So there were lots of ifs and buts going on in my mind. But then, yes, Mr. Sridhar backed me a lot. He said, "Don't worry, you jump into it and you will start swimming." What were your initial learnings about this industry, Praveen ji? When I joined this company, when I started working with transporters, the industry was quite in a different phase. Of course, even today, this industry, I can't say that it is a very well organized industry, but at that time, the industry was absolutely unorganized. It was very, very raw, very, very crude. आज तो ट्रांसपोर्टर्स बहुत कुछ समझ गए हैं, टेक्नोलॉजिकली उनको बहुत एडवांस्ड हो गए हैं. दे हैव बिकम मोर टेक्नो सेवी, दे अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, दे वैल्यू टेक्नोलॉजी, दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी. लेकिन उस वक्त कम्युनिकेशन यूज्ड टू बी अ बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज. क्योंकि ट्रांसपोर्टर को जब तक आप उसकी भाषा में आप ना समझाओ, उसके लेवल पे आके आप ना बात करो, तब तक उनके साथ कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल होता था. आई अंडरस्टूड दिस कि ये एक क्लास ऐसा है कि यू कांट एक्सपेक्ट देम टू कम अप टू योर लेवल, यू हैव टू कम डाउन टू देयर लेवल. If you really want to understand this psychology, if you want to work with them, if you want to bridge the gap between you and them, then we should come down to their level. We can't expect them to come to our level and understand. That is not possible. So I started going down to their level. I started mingling with them. उनके साथ उठते बैठते खाते पीते, उनमें से एक हो गया. और जब ये फासला दूर हुआ, फासला तय हो गया, तब दे अडॉप्टेड मी, दे एक्सेप्टेड मी. और वो पहले जो एक डर था कि यार ये पता नहीं कौन ये साहब आ गया है, वो साहब वाला फीलिंग ख़त्म हो गया और उसके जगह ले ली पीपी साहब ने. सो आई बिकेम अ फ्रेंड ऑफ दिस फ्रेटर्निटी. आज भी लोग मुझे प्रवीण पुनतांबेकर के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हाँ पीपी सर के नाम से ज़्यादा जानते हैं.
तो मेरी पहली कोशिश यही थी कि वो एक गैप मिटाऊं और इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को करीब से देखूं और जानूं। प्रवीण जी, जो SRTOs है, स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जिसे आप कहते हैं, ये इस देश के लिए या इस इंडस्ट्री के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है ये? तो ये जो स्मॉल फ्लीट ओनर्स हैं, स्मॉल ऑपरेटर्स हैं, SRTO सेगमेंट है, दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 70 to 80% ऑफ द इंडस्ट्री एंड दे आर द रियल अनसंग हीरोज़ ऑफ दिस इंडस्ट्री। आज इन छोटे ट्रांसपोर्टर्स की बदौलत, आई कांट से ओनली छोटे ट्रांसपोर्टर्स, बड़े ट्रांसपोर्टर्स का भी उतना ही अहम रोल है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की बदौलत आज हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारी इकोनॉमी चल रही है। ये कहना कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हमारे ट्रांसपोर्टर्स ना हो, अगर ये काम करना बंद कर दें, तो आवर इकोनॉमी विल बी पैरालाइज्ड। They really play such an important role in the Indian economy. That is why I call them the unsung heroes of Indian economy. हालांकि ये भी बात बड़ी दुखद है, अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला, आज भी नहीं मिल रहा है। What do you think are the reasons that we are not getting this acknowledgement? This industry is still being neglected. रीजंस कुछ तो रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कभी भी पॉलिश्ड नहीं रही, बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं रही। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे बहुत कम हैं। अब तो फिर भी ठीक है कि सेकंड जनरेशन आ रही है तो बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन उस ज़माने में, आज से 25 साल पहले, ट्रांसपोर्टर बनना मतलब कोई बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं मानी जाती थी। वो एक मजबूरी में बनता था। जैसे कोई काम नहीं मिलता था, वो क्लीनर बन जाता था। क्लीनर से गाड़ी पहुंचते पहुंचते, टायर की हवा चेक करते करते इत्तेफाक से या गलती से वो ड्राइवर बन जाता था। जो मेन ड्राइवर है वो आराम कर रहा है, तो छोटा चेला जो है वो गाड़ी चला रहा है, स्टीयरिंग संभाल रहा है, और इस तरह से वो ड्राइवर बनता था और वहाँ पे आके उसकी ज़िंदगी रुक जाती थी। श्रीराम की फ़िलॉसफी हमेशा से यही रही है कि जो वो सेगमेंट है जिसको कि कोई फाइनेंस नहीं करता है, अनटचेबल सेगमेंट जिसे कहा जाता है इकोनॉमी की भाषा में, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ रिस्की सेगमेंट, जो कि नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिस्की सेगमेंट। और वहाँ पर उन लोगों को सारी बड़ी कंपनियां पीछे हट जाती हैं फाइनेंस करने से। आज भी जब किसी बड़े ट्रांसपोर्टर को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो सारी बैंक, सारी ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज आगे आ जाती हैं। लेकिन आज भी जब भी एक छोटा ड्राइवर, एक सुलेमान खान, एक भीमराव पाटिल या एक बलबीर सिंह, जिसकी कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं होती है, वो जब एक ज़िंदगी में कुछ तरक्की करना चाहता है, एक उसकी ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले एक ट्रक का मालिक बन जाओ। वो जब ट्रक खरीदना चाहता है तो आज भी सारी कंपनी, सारी फाइनेंस कंपनी, सारी बैंक्स एक कदम पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उसके पास कागजात नहीं होते हैं। उसकी ईमानदारी में कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, ये पैसा डुबाते नहीं हैं। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो इस सेगमेंट में इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, वो एक्सीडेंटल डिफ़ॉल्ट होता है। इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट तो इवन 1% भी नहीं मान सकते आप, इतना कम है। हाँ, एक्सीडेंटल डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि बंदा बीमार हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पास पैसे नहीं हैं, गाड़ी चला नहीं पा रहा है, इसलिए वो EMI नहीं भर पा रहा है। So I call it an accidental default. It is not an intentional or willful default. तो इस सेगमेंट को जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक उनका हम ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक वो कल भी नेग्लेक्टेड थे और आज भी नेग्लेक्टेड हैं। Friends, we are in conversation with Mr. Praveen Puntambekar. We'll continue this interaction after this very short break. Don't go anywhere. You are watching Trans India, Real People,
real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। प्रवीण जी, मैंने आपके साथ कई श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के इवेंट्स, फंक्शंस अटेंड किए हैं, कई ट्रक उत्सव अटेंड किए हैं एंड इवन एसोसिएशंस मीटिंग में आप जब बात करते हैं, आपने हमेशा कहा है कि हमारे कंपनी के लिए अ ट्रकर इज़ नॉट अ कस्टमर नंबर बट अ नेम। व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड इट एंड इसने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के बिजनेस को कितना हेल्प किया है? गिरीश जी, जैसा मैंने बताया कि श्रीराम की फ़िलॉसफ़ी ही शुरू से ऐसी रही है कि जिसको कोई फाइनेंस नहीं करता है उसे श्रीराम करता है, जिसका कोई नहीं उसका श्रीराम। एक हमेशा से एक थॉट ये रहा है, कस्टमर को कभी हमने कस्टमर नहीं समझा। वी ऑलवेज ट्रीटेड देम व्हाइल इन श्रीराम, we always treated them as our business partners, as our family members. एक आपको छोटा सा फ़र्क बताता हूँ मैं। जो प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं या जो बैंक्स हैं, सोफिस्टिकेटेड बैंक्स हैं, वहाँ जब एक कस्टमर EMI भरने जाता है, एक टिपिकल सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जब वो एक कस्टमर जाता है तो पहले तो वो चकाचौंध देख के घबराता है, कहाँ आ गया मैं। वो बेचारा अपना टिपिकल बलबीर सिंह, सुलेमान खान, भीमराव पाटिल होता है। तो पहले तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, 10 काउंटर हैं, किसके पास जाऊँ। अंग्रेज़ी समझ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है। फिर कोई आके उसको पूछता है क्या काम है, तो वो बोलता है मुझे EMI भरनी है। फिर उसको बताया जाता है कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से टोकन लीजिए आप। वो बड़ी मुश्किल से, मशक्क़त से टोकन लेता है और फिर उसे कहा जाता है कि वो डिस्प्ले विंडो पे आप देखना, आपका नंबर आएगा तब आप उस विंडो पे चले जाना। अब हमारा बलबीर सिंह बेचारा सांस रोके वो डिस्प्ले विंडो देख रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। अब उसमें नंबर आ गया 320 और ये जनाब पहुँचे विंडो नंबर 6। वहाँ पे उसने पैसा भरने के लिए हाथ आगे किया तो वो जो बैठा है या बैठी है एग्जीक्यूटिव, हाँ जी आपका एग्रीमेंट नंबर। उसने अपना एग्रीमेंट नंबर दिया, उसने लिया, टक 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 एग्रीमेंट डाला, हाँ इतनी EMI हुई, ये दिया, रिसीट दी, नेक्स्ट। वहाँ पर उसकी पहचान सिर्फ एक एग्रीमेंट नंबर है। उसे ना कोई बलबीर सिंह के नाम से जानता है, ना भीमराव पाटिल के नाम से जानता है, ना सुलेमान खान के नाम से जानता है। उसकी पहचान है वहाँ पर सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड एग्रीमेंट नंबर। ये श्रीराम में नहीं होता है। श्रीराम में जब भी यही बलबीर सिंह जब श्रीराम की किसी ब्रांच में जाता है तो सबसे पहले तो उसे जानी पहचानी शक्लें दिखती हैं, उसे पहचानने वाले लोग मिलते हैं और सबसे पहले तो उसे दूर से कोई आवाज़ आती है, आइए बलबीर सिंह जी, आइए सुलेमान भाई, क्या हाल चाल है। वहाँ पे उसको नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पे उसको ये एहसास कराया जाता है कि वहाँ उसकी कोई अहमियत है, उसकी इज्जत है। उसे ये नहीं पूछा जाता कि आप क्यों आए हो, उससे सबसे पहले तो उसका स्वागत किया जाता है कि आप कैसे हो, क्या हो, चाय पियो क्या, घर में सब कैसे हैं। वहाँ पे चाहे वो फील्ड ऑफिसर हो, चाहे ब्रांच मैनेजर हो, चाहे फील्ड एग्जीक्यूटिव हो या सुपरवाइज़र हो, जो भी हो, लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई उसे जानने पहचानने वाला ज़रूर होता है। वहाँ आके उसको लगता है कि मेरी भी कोई पहचान है, मेरी भी कोई इज्जत है, मुझे कोई लोग जानते हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है जो दूसरी फाइनेंस कंपनीज़ या कमर्शियल बैंक्स में और श्रीराम में। श्रीराम में उसे सिर्फ एक अहम
कस्टमर की नज़र से नहीं देखा जाता है। वो एक जीता जागता इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसका भी ईगो है, और उसे हम वही इज्जत, वही सम्मान वहाँ देते हैं और देते रहे हैं। यही एक फ़र्क है। Praveen ji, in 25 years of your career, you started a lot of initiatives for the truckers. Can you take us through some of them? गिरीश जी, इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए। ये उस दौर की बात है जब श्रीराम ग्रो कर रहा था। 25 साल पहले की बात है जब STFC was growing, और उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसा मैंने आपको बताया, कस्टमर रिलेशनशिप बनाने की, क्योंकि हमारा कोई कंप्यूटर जनरेटेड बिजनेस नहीं था। इट वॉज द एंटायर एम्पायर, एंटायर बिजनेस मॉडल वॉज बिल्ट ऑन रिलेशनशिप। ये कोई सिस्टम जनरेटेड बिजनेस मॉडल नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। तो उस वक्त दौरान हमें इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि कस्टमर के साथ हमारे रिलेशनशिप्स को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको थिक रिलेशंस बनाएं। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की। हमने एक्चुअली उनकी लेवल पे आके, सड़कों पे आके, हाईवेज़ पे आके हमने एक्टिविटीज़ प्लान की। अगर एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं, पर करीब करीब 300-400 ट्रांसपोर्टर मीट्स हमने ऑर्गेनाइज़ की ऑल ओवर इंडिया। ट्रक उत्सव ऑर्गेनाइज़ किए, ट्रक एक्सचेंज कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए। ये सारे इनिशिएटिव्स ऐसे थे जिसमें कि ट्रांसपोर्टर अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर आता था, एंड दे यूज्ड टू स्पेंड अ डे विद श्रीराम। वहाँ पे उनके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती थी। वी यूज्ड टू इनवाइट मैन्युफैक्चरर्स, वी यूज्ड टू इनवाइट द पेट्रोलियम कंपनीज, वी यूज्ड टू इनवाइट द टायर कंपनीज, बैटरी कंपनीज, मतलब ट्रक से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज उस शामियाने के अंदर स्टॉल में होती थी। दे यूज्ड टू इम्पार्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ऑल दिस ट्रांसपोर्टर्स। मीनवाइल उनकी फैमिलीज़ के लिए हमने अलग से इंतज़ाम किए होते थे। उनका हेल्थ चेकअप होता था, एंटरटेनमेंट होता था, उनको लंच वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता। इट यूज्ड टू बी अ डे आउट फॉर हिज एंटायर फैमिली। Praveen ji, which has been the most memorable Utsav to date with the largest amount of gathering? 16,000 sitting under one roof at one time. That was largest. That was the largest. 16,000 people were sitting under one roof, and we had to hire a complete indoor stadium for that. And the whole town was really painted red with Shri Ram. Because उस वक्त तक इतनी रिलेशनशिप बढ़ गई थी, लोगों को जब पता चला कि हमारे ग्रुप चेयरमैन श्री आर त्यागराजन साहब वहाँ पे आने वाले हैं, तो एक तरह से एक हुजूम आ गया था लोगों में, एक जुनून आ गया था त्यागराजन साहब को देखने के लिए। इतने लोग उनको प्यार करते हैं। वो त्यागराजन साहब के कटआउट्स लगाए गए थे पूरे शहर में, और हमने नहीं लगाए, ये ट्रांसपोर्टर्स ने लगाए थे, ड्राइवर्स ने लगाए थे। प्रवीण जी, और भी ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो आपने ट्रकर्स के लिए और उनके फैमिलीज़ के लिए भी लिए हैं। कैन यू गिव अस अ ब्रीफ अबाउट देम? हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो छोटे ट्रांसपोर्टर की फैमिली में बच्चियां होती हैं, लड़कियां, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, वो गर्ल चाइल्ड जो है, दे ऑलवेज हैव टू टेक अ बैक सीट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। जब तक 6वीं 7वीं तक होता है, जब तक फ्री एजुकेशन होता है, तब तक तो वो पढ़ाते हैं। उसके बाद 7वीं के बाद उसका एजुकेशन बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा जो ट्रांसपोर्टर है, ही कांट अफोर्ड द एजुकेशन, ही कांट अफोर्ड द एक्सपेंसेस। उसको वो फीस भरना भी भारी पड़ता है, और होता यह है कि बच्ची को घर बैठा दिया जाता है। ये सोच के, ये देखने के बाद श्रीराम हैड स्टार्टेड वन इनिशिएटिव, दैट वाज एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। दैट वाज अगेन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहाँ पर कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया कि हर ट्रांसपोर्टर के बच्चा, अगर वो 7th पास है, 8th में जा रहा है, तो उसको अगर if he or she has scored 60% marks, he is entitled for a scholarship.
कोशिश हमारी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाएं। उसके साथ हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के साथ में टैप्स किए, क्योंकि हर जगह हमारा पहुंचना नामुमकिन है। तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस इसमें बहुत हमको सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं। उनके थ्रू हमने बहुत डीप में जाके लाखों बच्चों को ट्रांसपोर्ट की तरफ से, ट्रांसपोर्टर्स के बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी गई है। दूसरा इनिशिएटिव हमारा ये था हेल्थ। ट्रांसपोर्टर को अपनी हेल्थ के लिए देखने का टाइम कभी नहीं होता है। ही इज़ ऑलवेज रनिंग फ्रॉम पोल टू पोस्ट टू मीट बोथ द एंड्स। वो बेचारा बीमार भी होता है, बुखार भी होता है, सर्दी खांसी भी होती है, तो उसको ये वक्त नहीं होता कि वो जाके अपनी चेकअप करवा ले। इसलिए हमने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाना शुरू किए। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स जब सक्सेसफुल हुए, देन वी इनिशिएटेड a project which was of mobile vans, mobile clinics. I am very happy to say that today we have got several such vans which are functioning in main transport hubs, जो कि श्री राम की sponsored गाड़ियाँ हैं, जो proper full-fledged clinic है, having an MBBS doctor with an assistant. वहाँ पर उसको फ्री कंसल्टेंसी होती है, चेकअप होता है, उसको एजुकेशन के साथ साथ उसको हेल्थ चेकअप दिया जाता है, उसके जो वर्क हैबिट्स हैं, हेल्थ रिलेटेड है, एजुकेशन है, वो दिया जाता है, उसको इवन मेडिसिन भी फ्री दिए जाते हैं। द आइडिया वॉज टू एंश्योर दैट द ट्रांसपोर्टर्स का अवेयरनेस हेल्थ के लिए बढ़े एंड दे लीड अ हेल्दी लाइफ। तीसरा एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। द आइडिया आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई वी इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट। कहने का मतलब यह है कि श्री राम में रहते हुए, श्री राम के साथ में हमेशा मैंने ये देखा है कि श्री राम की फिलॉसफी हैज़ ऑलवेज रिवॉल्व्ड अराउंड ट्रांसपोर्टर्स एंड देयर फैमिली। And you've gone beyond the call of business to take care of their always. It was never confined to business. It was never related to business. जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टर श्री राम का कस्टमर हो। श्री राम का कस्टमर हो या ना हो, अगर उसका बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर अ स्कॉलरशिप। मोबाइल वैन्स में ये नहीं पूछा जाता है कि आप श्री राम के कस्टमर हो क्या, आप ट्रांसपोर्टर हो, दैट इज़ इनफ। ट्रांसपोर्ट एरियाज़ में, ट्रांसपोर्ट नगर्स में, ट्रांसपोर्ट हब में अगर वो क्लीनर है, ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछा जाता कि आपने श्री राम से लोन लिया है कि नहीं लिया है। These initiatives were never related to business. They were always beyond business. That has been the biggest difference in the initiatives taken by many other companies and Shri Ram. दोस्तों, हम प्रवीण जी के साथ हमारी वार्तालाप जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए ट्रांस इंडिया, रियल पीपल, रियल इमोशंस। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। प्रवीण जी, ट्रकर्स के अलावा आप रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के भी काफ़ी करीब रहे हैं और आपने उनके साथ काफ़ी काम भी किया है, कई स्कीम्स पर आपने काम किया है। Can you tell us about your relationship with these associations and how important do you think are these associations for the road transport industry? मेरी नज़र में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। They are very important for this industry. Unfortunately, अभी थोड़ा सा माहौल अलग लग रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस अगर सब लोग एक यूनाइट हो जाए ना, इट्स अ वंडरफुल स्ट्रेंथ, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस एक ऐसी संस्था होती है
जहाँ पर कि अपना छोटा से छोटा ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर अपनी समस्याएं लेके जा सकता है। सही लोग अगर वहाँ पर बैठे हों तो उनकी समस्याएं वहाँ पे सुनी जाती हैं, उनके हल निकाले जाते हैं। अब ये बात अलग है कि सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस उतने एक्टिव शायद नहीं हैं, लेकिन हाँ, आज भी ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं and they take genuine interest in resolving their issues. I have a great respect for transport associations. Okay, this may be a biased question, but are there any particular associations that you loved working with? Yes, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। AIMTC के साथ मैं बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ, BGTA के साथ बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ, एको गोवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एको गोवा के जो दास साहब थे, चित्तरंजन दास साहब, उनके साथ तो मेरे बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। एक तरह से मेरे लिए तो वो ही वॉज अ फादर फिगर। उनसे मैंने बहुत सीखा है। ही हैड अ डिफरेंट फिलॉसफी। वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नहीं चलाते थे, ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ। ही हैड अ डिफरेंट फिलॉसफी। तो उनसे मैंने बहुत सीखा है। कुछ बहुत एक्टिव एसोसिएशंस हैं जैसे CGTA। CGTA के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी नया इनिशिएटिव आपको लॉन्च करना है तो मेरे हिसाब से CGTA इज़ द फर्स्ट चॉइस टू लॉन्च एनी इशू, एनी न्यू इनिशिएटिव। इट इज़ सच अ वेल ग्रूम्ड ऑर्गेनाइजेशन, सच अ क्लोज निट ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ की टीम वर्क इतना ज़बरदस्त है कि आप सिर्फ उनको बोलो कि साहब ये एक नया इनिशिएटिव हमको लॉन्च करना है और पूरी टीम भिड़ जाती है उसको सक्सेसफुल करने के लिए। हैट्स ऑफ टू देम। बट सिर्फ CGTA ही नहीं, देयर आर मेनी अदर एसोसिएशंस who are very active about their activities and they are having a genuine interest in it. Pravinji, how is the scrapping policy shaping up and how do you see it impacting the truckers especially? गिरीश जी, आई एम रियली हैप्पी कि ये जो अभी नई जो स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है, दिस इज़ रियली गुड एंड इट कैन रियली वर्क। जहाँ तक सवाल स्क्रैपिंग का है, स्क्रैपिंग ये लफ्ज़ हम पिछले करीब 15-17 साल से सुनते आ रहे हैं और कई लोगों ने कोशिश की पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप करने की। ये मैं बात तब की बता रहा हूँ जब एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी हुआ करती थी जिसके चेयरमैन होते थे मिस्टर नीलोत्पल बसु। ये उस ज़माने से मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता रहा हूँ और वहाँ उस वक्त भी हमारी यही बात होती थी कि आप ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसको आप एज के साथ क्यों रिलेट कर रहे हो। पहले जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होती थी वो सीधा सीधा उन्होंने तो कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया था कि 15 साल पुराने ट्रक स्क्रैप कर दिए जाए। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दिया कि 15 साल पुरानी है गाड़ी है तो वो पोल्यूशन फैला रही है, दे आर पोल्यूटिंग एंड देयर शुड बी देयरफॉर दे शुड बी स्क्रैप। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो ट्रक होता है या जो कमर्शियल व्हीकल होती है, इट इज़ नॉट मेयरली अ व्हीकल, इट इज़ नॉट मेयरली अ ट्रक, इट इज़ अ ब्रेड विनर फॉर अ फैमिली। आज करीब 50 लाख गाड़ियाँ हिंदुस्तान की सड़कों पे दौड़ रही हैं। इसका मतलब 50 लाख फैमिलीज़ इन ट्रकों के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक एवरेज 5 लोगों का परिवार मानते हैं तो 2.5 करोड़ लोग इस ट्रक के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इसमें से 70-80% क्लास वो है जो कि सिंगल ट्रक ऑपरेटर हैं या 2 ट्रक हैं या ड्राइवर ओनर सेगमेंट है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू जस्ट स्क्रैप हिज व्हीकल एंड देन उसके बाद क्या करेगा वो? आपने अगर गाड़ी स्क्रैप करवा दी उसकी, what will he do? He doesn't know any other business. He can't open a shop. He can't go and work in a factory. He's not a skilled labor. वो क्या करेगा? उसकी तो रोजी रोटी इस ट्रक से जुड़ी है। एंड आज भी अगर देखा जाए तो स्क्रैपिंग पॉलिसी बेनिफिशियल तब दिख रही है जब आप अपना पुराना ट्रक स्क्रैप करके एक नया ट्रक खरीद रहे हैं। Only then does it prove to be some kind of beneficial. Correct. I have always been talking about it and I have always been discussing, debating
with various people throughout कि साहब it has to be a phased upgradation process. You can't just pass an order कि ये गाड़ी स्क्रैप करो और आप नई गाड़ी ले लो. जो आदमी आज 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहा है, he is a small operator. The very fact that he is using a 15 years old vehicle, that means he is a small operator. क्योंकि बड़े फ्लीट ओनर तो कोई 15 साल पुरानी गाड़ी चलाएंगे नहीं. बड़े फ्लीट ओनर तो 3 साल 5 साल में अपना फ्लीट चेंज कर देते हैं, तो वहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो गाड़ियाँ पास ऑन कहाँ होती है? स्मॉल ऑपरेटर्स के पास, ड्राइवर्स के साथ हु आर एस्पायरिंग टू बिकम ओनर्स, या न्यू एंट्रेंट्स जो होते हैं इंडस्ट्री में, वहाँ वो गाड़ियाँ पास ऑन होती हैं. आज एक गाड़ी अगर स्क्रैप कर दी जाए तो उसका परिवार तो सड़क पे आ जाएगा. मेरे शुरू से हमने यही कोशिश की कि वी शुड प्रोपोगेट दिस आइडिया ऑफ फेज्ड अपग्रेडेशन सिस्टम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कि एक 15 साल पुराना जो गाड़ी का ओनर है, ही शुड अपग्रेड टू 10-year-old व्हीकल. दैट 10-year-old व्हीकल शुड अपग्रेड टू अ 5-year-old व्हीकल, एंड 5-year-old वाला जो है ही शुड बाय अ न्यू ट्रक. Unless we adopt this phased upgradation system, this problem will never be solved. हालांकि इस नई पॉलिसी में एक बहुत अच्छी बात है कि इस बार उन्होंने सिर्फ एज से रिलेटेड नहीं रखा है उसे. इस बार उन्होंने स्क्रैपिंग को फिटनेस के साथ जोड़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए हम काफ़ी साल से सब लोग कोशिश भी करते रहे. एक 15 साल पुरानी गाड़ी भी अगर वेल मेंटेन्ड है, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस किया गया है, तो इट इज़ एज गुड एज अ न्यू व्हीकल. At the same time, even if the vehicle is maybe 5 years old or 7 years old, if it is not maintained properly, it could be equally bad a vehicle. Friends, that was part 1 of our interaction with Mr. Praveen Puntambekar. Next week we'll continue this interaction and know more about Mr. Puntambekar's thoughts about this industry and his initiatives. Until next week, stay safe. Jai Hind.